Hi, today we are going to learn Rahim ke Dohe from class 7 Vasant textbook, both in English and Hindi. I have already done this in Tamil, so some people requested me to record this in both Hindi and English, so I'm doing it for them. Kindly make use of it. Okay, so going directly into the lesson. First Doha. कही रहीम संपत्ति सगे बनते बहुत बहुरीत बिप्ती कसौटी जे कसे तेई साचे मीत. So the meaning goes here, says Rahim, all the near and dear ones, that is friends and relatives, are present when we have property in our name. When there is a challenging situation, it gives the criteria to choose the best of them. And who accompanies you in testing times is the one who is the true friend. So in Hindi, we can say that as रहीम कहते हैं कि जब आपके पास संपत्ति होता है तो आपके सगे संबंधी आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आपके कष्ट का समय आता है तब उसकी कसौटी पे जो खरा उतरता है, जब जो कठिन सिचुएशन में आपके साथ रहता है, वही आपका सच्चा मित्र होता है. दूसरा दोहा, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो. दिस इज सेकेंड दोहा. In English, I'll tell you the meaning. When a fishing net is thrown in water, water flows out, leaving its attachment with the fish. Says Rahim, the fish though never leaves its attachment towards water, and if at all there arises a situation in which it has to leave the water, then the fish leaves its life instead. So इसका हिंदी में क्या मतलब है? जब एक मछली का जाल पानी में डाला जाता है तो पानी क्या करता है? पानी जाल से निकल जाता है, वो अपना मोह त्याग देता है. किसके तरफ? मछली की तरफ अपना मोह त्याग देता है. लेकिन मछली अपना मोह कभी नहीं त्यागती. किसके ऊपर से? पानी के ऊपर से अपना मोह कभी नहीं त्यागती. अगर उसका ऐसा कोई सिचुएशन बना कि उसे पानी का त्याग करना पड़े, पानी को छोड़ के बिछड़ना पड़े, तो वो बिछड़ कर क्या करेगी? मर जाएगी. Such is the attachment of the fish. Then the third doha, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान कही रहीम परकाज हित संपत्ति सच ही सुजान. So the meaning in English is, the tree doesn't eat its fruit, the river doesn't drink its own water. Says Rahim, the one who accumulates wealth only for the good of others is the only person who can be addressed as a real intelligent man. So in Hindi, we can tell this meaning as, the tree that is पेड़ अपना फल नहीं खाता है. सरोवर मीन्स नदी अपना पानी नहीं पीता है. इसी तरह जो आदमी अपने लिए संपत्ति को समेट के नहीं रखता है और बाकी लोगों को, जो उनके वेल विशर्स हैं, उनको अपना पैसा देता है और उनकी मदद करता है, सहायता करता है, वही आदमी सबसे बुद्धिमान है, सुजान है. सुजान का मतलब होता है बुद्धिमान. ठीक है. अगला दोहा, चौथा दोहा, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात धनी पुरुष निर्धन बये करें पाछिली बात. The meaning in English is, though the clouds of the Shravan Hindi month, the month is mentioned here is Kwar, which means Shravan Mas. Shravan Mas is the month in Hindi where the clouds are dark. They look dark, but they are empty and they do not draw up a single drop of rainwater. Similarly, when a rich man becomes poor, he starts to do pompous talks. Pompous means showing off. Though they don't own a thing, they just show off that as if they have everything. So that is the nature when they lose everything. Okay, they don't have anything. And in Hindi, I'll tell you the meaning.
जो बादल श्रावण मास में आपको दिखते हैं वो दिखते तो घने हैं, ऐसा लगता है कि उसके अंदर बहुत पानी है, लेकिन जब बरसने की बारी आती है तो उसके अंदर से एक भी बूंद पानी नहीं आता और बारिश बिल्कुल नहीं होती है। उसी समान जो आदमी धनी होता है और फिर उसके पास पैसा नहीं बच जाता, वो पुअर हो जाता है, गरीब हो जाता है। जो पहले अमीर था लेकिन अभी गरीब है, जिसने सब कुछ खो दिया हो, उसकी बातें कैसे होती है? दिखावे की। वो ऐसे दिखाता है जैसे उसके पास सब कुछ है, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो ये है इस दोहे का अर्थ। 5th वन, 5वां दोहा। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसे जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। The meaning of this doha is, just as the earth bears cold, hot and rainy season alike, in the same way, we human beings must learn to bear both happiness and sorrow in the same way and condition our body and mind to have the strength to bear it. इसको हिंदी में भी बता देती हूँ। जैसे धरती शीत घाम और मेह, मतलब ठंडा, गरम और मेह मीन्स बारिश का जो सीज़न होता है। बारिश के समय में, हर समय में अपनी जो क्षमता है उसको बरकरार रखता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा सीज़न है ये। तो उसके जैसे, धरती के जैसे हमें भी कैसे रहना चाहिए? हम मनुष्य लोगों को कैसे रहना चाहिए? हम मनुष्यों को बहुत ज़्यादा सुख मिलने पर या बहुत ज़्यादा दुख मिलने पर बहुत हताश, निराश और बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। हमेशा एक समान रहना चाहिए और उसके लिए हमें अपने बुद्धि और आत्मा को तैयार रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। ये है इसका अर्थ। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आया और आपके काम आएगा। थैंक यू।